Good morning, students. From today, we are going to start our next chapter, that is current electricity. Current electricity. So, obviously, as the name of the chapter suggests, in this chapter, we are going to study about the electric current. Okay. So, how does the current flow through any circuit? What is the basic concept of electric current? All these things we are going to study in this chapter. So, first of all, let us understand the meaning of word current or electric current. Okay. So, we know that how can we define an electric current? We have already studied in class 10th that let us consider a wire. If the charges are flowing through that wire, then the rate at which that charges are flowing through that wire is called the electric current flowing through that wire, right? अगर हमने कोई वायर लिया, उस वायर में से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं. चार्जेस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस, राइट? सो जब एक वायर में से इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस फ्लो हो रहे हैं, तो जिस रेट से वो फ्लो हो रहे हैं उस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक current. So we can define electric current as the rate of flow of charges, right? जिस रेट से चार्जेस फ्लो होंगे किसी वायर में, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट ऑफ दैट फ्लोइंग थ्रू दैट वायर, राइट? अगर हम इसी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें, सो वी कैन राइट इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट is equals to charge upon में time. अगर हम इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो द इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय I, charge is denoted by Q and time is denoted by T. Then this will be the symbolical representation of the electric current that is flowing through that conductor wire, that is I is equals to Q by T. अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा M0 L0 T0 A. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें, तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, राइट? एज द थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि किसी भी कंडक्टर में से जो चार्जेस फ्लो होंगे या किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा, वेदर इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, राइट? द प्रोटॉन हैज नो रोल टू प्ले इन दैट in deciding the charge on that body. Why? Because किसी भी बॉडी पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, that is due to the donation or exception of the electron. If any of the atom has donated the electron, then it is considered to be positive, or else if it has accepted the electron, then it is considered to be negative. This thing we have already discussed in the chapter 1, right? So किसी भी बॉडी में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली. और वी नो दैट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होते हैं. तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होगा. इट मीन्स किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो होगा, दैट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट? The current will always flow from positive terminal of the battery to the negative terminal, right? That is from the high potential region to the low potential region. ये चीजें हम already discuss कर चुके हैं. अगर हम एक यूनिट करंट को डिफाइन करें, तो यूनिट करंट हो जाएगा 1 एम्पियर. So how can we define a unit current that is 1 ampere current? So we can define 1 ampere current as if चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम, सो आई हैव रिटन कूलम हियर. टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन सेकंड हियर. सो जब किसी वायर में से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट वायर इज सेड टू बी द 1 एम्पियर करंट, राइट? आई एम रिपीटिंग अगेन. इफ 1 एम्पियर करंट if 1 coulomb charges are flowing through a conductor wire in 1 second, then the current flowing through that wire is said to be the 1 ampere
current, right? So in this way we can define the 1 ampere current. Now obviously since we are talking about the flow of charges, right? जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम फ्लो ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं. सो लेट अस कंसिडर अ कंडक्टर वायर in which there must be some charges. Let us consider a conductor wire which is obviously in the form of a cylinder, right? जब हम एक कंडक्टर वायर की बात कर रहे हैं तो वो एक सिलेंडर के फॉर्म में होगा. Let this be end A and this be end B of that conductor wire. Suppose we have connected this conductor with a battery with the help of a cell, right? This is the high potential region, this is the negative terminal, that is the low potential region. Now obviously the current will flow from positive terminal to the negative terminal, that is this will be the direction of the flow of current, right? And since this is the direction of flow of current, so the electrons will rotate in the opposite direction, that is the flow of electron will be in this direction. It is quite obvious कि करंट के अपोजिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो होंगे, राइट? सो व्हेन वी आर टॉकिंग दैट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और उसको सीधा रास्ता मिल गया और वो इस एंड से इस एंड तक पहुंच गया इजीली, राइट? ऐसा तो नहीं होगा. यहाँ पे थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ पॉजिटिव आयंस भी हैं, राइट? तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस हैं एक कंडक्टर वायर में, राइट? तो जब भी हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो की या किसी चार्ज के फ्लो की, तो ऐसा तो नहीं होता है कि एक चार्ज के पास एक सीधा रास्ता है और उस रास्ते को कवर करके वो दूसरे एंड तक आ गया. इट इज क्वाइट नॉट लाइक दैट, राइट? इस इलेक्ट्रॉन को एंड बी से एंड ए तक आने में मल्टीपल चार्जेस का सामना करना पड़ेगा. हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो, मतलब ये जो पॉजिटिव है ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. सिमिलरली ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की कोशिश करेगा. एक दूसरा पॉजिटिव आयन वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, राइट? तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स के से रिपेल होगा, उस पर एक रिपल्शन का फोर्स लगेगा. और सिमिलरली यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं वो सारे इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट? जिसके कारण इस एंड बी से एंड ए तक जाने में उसका मल्टीपल टाइम कोलिजन्स और रिपल्शन होगा दूसरे इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस के कारण. और उन सारे कोलिजन्स के बाद जिस वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन एंड बी से एंड ए तक आएगा, उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. एक ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से कोई इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पर आता है, उस वेलोसिटी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. या हम इसको इन सिंपल वर्ड्स ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन के एक एंड से दूसरे एंड तक आने की जो एवरेज वेलोसिटी होगी, मल्टीपल टाइम उसके कोलिजन और रिपल्शन के बाद जो उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी, दैट एवरेज वेलोसिटी इज सपोज्ड टू बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट? सो सिंपली मल्टीपल कोलिजन्स और मल्टीपल टाइम रिपल्शन के बाद जब एक इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक आता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, दैट वेलोसिटी is called as drift velocity and it is denoted by Vd. Here the d is written in the subscript and this Vd stands for the drift velocity. Okay, so as we have just discussed, we can say that the average velocity is also called as the drift velocity. So let us consider कि initially किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी u, उसका एक दूसरे चार्ज के साथ कोलिजन हुआ और अब उसकी वेलोसिटी हो गई है v, राइट? सो व्हाट विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन? द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन बाय vd इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2. सिंस यहाँ पर हम एक ही चार्ज के साथ कोलिजन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने डिवाइड बाय 2 किया.
इसका मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स कोलिजन या रिपल्शन होता तो जितनी बार उसकी वेलोसिटी चेंज होती उतनी बार हमको यहाँ पर लिखना पड़ता एंड डिनोमिनेटर में उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स आ जाती। सिंपल सी चीज, जैसे हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। नाउ इफ वी हैव टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर हम इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करें, so how can we do that? Let us understand this. Let us consider a conductor wire. हमने कंडक्टर वायर कंसिडर किया, इसका एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने कंसिडर किया एंड दैट एरिया इज सपोज टू बी डिनोटेड बाय कैपिटल ए। एक वायर आई हैव कंसिडर्ड, उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने ले लिया कैपिटल ए, राइट। नाउ हमने मान लिया कि किसी पर्टिकुलर टाइम स्मॉल टी में इस पर्टिकुलर एरिया से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, लेट दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बी एन। इसका मतलब इस स्मॉल टाइम टी में एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं वो कितने हो गए, एन। हो सकता है इस एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, इट कैन बी एनी नंबर, राइट। और हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, ई, दैट इज ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को माइंड में रखूं, किसी पर्टिकुलर टाइम स्मॉल टी पर इस यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा एन ई ए वी डी इंटू टी, राइट। That is the total charge flowing through that wire in a unit cross sectional area is equal to the product of obviously the number of charges, E that is the charge on electron, A that is the cross sectional area of the wire, VD हर एक की जो drift velocity होगी वो, into जितने टाइम के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो वो। This is the amount of total charge that is flowing through that circuit in a particular time t, राइट। नाउ ये तो आपके पास आ गई चार्ज की वैल्यू। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं करंट की। सो करंट का फॉर्मूला होता है I is equals to Q by T. So from here I will get I is equals to NEA VDT divided by T. T से T cancel. So I is equals to NEA VD. This is the expression for the total current flowing through the wire when NEA and VD are given to you. From here we can also understand one thing. N is a constant term, right? It can be any number and numbers are the constant values. E is the charge on electron, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. A is the cross sectional area of the wire, that is also a constant term. It is not getting changed. So from here you can conclude that this I is proportional to VD. मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड होगी उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड पे जाएंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर वायर में से, राइट। सो इट इज क्वाइट सिंपल थिंग। वेलोसिटी ज्यादा तो करंट भी ज्यादा, वेलोसिटी कम तो करंट भी कम। This is the expression for the total. This is the expression for the drift velocity as well as the relation between the electric current flowing through that wire and the drift velocity of the electron flowing through that wire. Right? Now here एक term हमारे पास आती है, that is the current density. So what do we mean by the term current density? Let us consider it here. What do we mean by the term करंट डेंसिटी? क्या समझते हैं हम इस टर्म से? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। करंट डेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल J. सो करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू, current density is equals to electric current
अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया और एनी पर्टिकुलर एरिया, इट कैन बी करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट और क्रॉस अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका मतलब किसी वायर में से या किसी भी सर्किट में से जब हम करंट फ्लो करने की बात कर रहे हैं तो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उस डेंसिटी को या उस पर्टिकुलर फ्रैक्शन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल J। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं I से और क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया A, राइट। So this is the symbolical representation of the current density, that is J is equals to I upon में A। और from our previous equation अगर हम I की वैल्यू पुट करें so we will get J is equals to NEA VD divided by A से A cancel और from here you will get NE VD। This is the expression for the current density through any conductor wire, that is J is equals to NE VD. Also from here you can conclude that this J is proportional to VD, right? J is proportional to VD। इसका मतलब obvious सी बात है कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो करंट डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, right? That is the flow of current flowing through the wire will be obviously more, right? Also one thing you can conclude from here कि अगर ये जो A है ये यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया की हम बात करें, अगर A जो है उसकी वैल्यू यूनिट हुई दैट इज A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा हुआ तो उस केस में जो करंट होगा, करंट डेंसिटी होगी दैट इज इक्वल्स टू I। मतलब हर वो कंडक्टर वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है उसमें जो करंट होगा दैट इज इक्वल टू द करंट डेंसिटी ऑफ दैट वायर, राइट। 1 मीटर स्क्वायर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के वायर में करंट की वैल्यू और करंट डेंसिटी की वैल्यू दोनों इक्वल होगी, राइट। दिस थिंग वी हैव कंक्लूडेड। नाउ अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें सो इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर अपॉन में मीटर, एरिया की स्क्वायर होती है मीटर स्क्वायर। सो एम्पियर अपॉन में मीटर स्क्वायर इज द SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी J। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी शैल प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, that is one of the most important topic of your syllabus, that is the Ohm's law, right? That you have already studied in class 10th also. Just for recall purpose we are discussing it here, and in 12th you have to study it in detail also, okay? So today we are discussing it just for revision purpose. In our next class we will study it in detail. What do we mean by Ohm's law? What we have learnt in class 10th, that all the things we are discussing here. Basically, Ohm was a scientist and he gave us the relation between V and I, right? Now what is this V here and what is this I here? V is the potential difference and I is the electric current, right? That we have already studied in chapter 2 and chapter 3, right? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज और करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो बेसिकली ओम वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने हमको ये बोला था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक करंट के जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब द मोर विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द मोर विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप ज्यादा पोटेंशियल की बैटरी यूज करोगे तो ज्यादा करंट फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर वायर में से, राइट।
So this was basically the relation between the V and I. जैसे जैसे हम V बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जाएगा, right? That is the current flowing through the wire is directly proportional to the potential difference applied across that wire. यहाँ से अगर मैं proportionality का साइन हटाऊं तो I have to introduce a constant here and that constant is R, right? What is this R here? R is the resistance. ये आपने already पढ़ा है. R is the resistance. Now what do we mean by the term resistance? Resistance का मतलब होता है the obstructions in the path of current are called as the resistance. Obviously बात है कि अगर हम किसी भी वायर में से करंट को फ्लो कर रहे हैं तो हर एक मटेरियल की ये टेंडेंसी होती है कि वो करंट को फ्लो होने से रोकता है, राइट? कुछ मटेरियल्स ज़्यादा रोकते हैं, कुछ मटेरियल्स कम रोकते हैं, लेकिन हर एक सब्सटेंस जो है वो करंट को अपोज करता है, राइट? सो ऐसे सब्सटेंस जो करंट को ज़्यादा अपोज करते हैं उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और वो सब्सटेंस जो करंट को कम अपोज करते हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है, राइट? सो रेजिस्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट by which we can say that it obstruct the path of current through that to flow through itself, right? The obstruction in the path of current in any circuit is called as the resistance. यहाँ से अगर हम resistance के लिए expression निकालें, so resistance हो जाएगा V upon में I, और we can say that the ratio of potential difference and the electric current flowing through the wire is called as the electric resistance. यहाँ से अगर हम resistance की SI यूनिट की बात करें, so resistance की SI यूनिट होती है ओम और इसका सिंबल होता है like this, right? This is the symbol of ohm. Since the term resistance was introduced by the scientist Ohm, that's why its SI unit is named by his name, that is the ohm, and this is the symbol of ohm, right? अगर हम यहाँ से 1 ohm को डिफाइन करें, मतलब एक यूनिट रेजिस्टेंस को डिफाइन करें, तो यूनिट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हो जाएगी 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर. इसका मतलब अगर आपने 1 वोल्ट की बैटरी यूज की है और किसी वायर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना कहलाएगा? 1 ओम रेजिस्टेंस, राइट? इफ ऑन अप्लाइंग द वन बैटरी ऑफ 1 वोल्ट या इफ ऑन अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट थ्रू अ सर्किट 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू द वायर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज सेड टू बी द 1 ओम रेजिस्टेंस, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Now, there are certain limitations of the Ohm's law. The first limitation is that the temperature of the wire should remain constant, right? Temperature जो है वो कैसा होना चाहिए? Constant. जिस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है उसका टेम्परेचर शुड बी constant. बट प्रैक्टिकली अगर ऐसा देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने किसी वायर में से करंट को बहुत देर तक फ्लो करवाते रहे तो वो गर्म हो जाता है, राइट? अगर हम किसी वायर में से करंट को फ्लो करवाएंगे तो वो कुछ समय बाद गर्म होने लग जाएगा. इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रह पाता है, राइट? सो ये एक लिमिटेशन थी ओम्स लॉ की. द सेकेंड लिमिटेशन वाज दैट there should be no any strain into the conductor, right? जो कंडक्टर है उसमें किसी भी तरह का कोई स्ट्रेन नहीं होना चाहिए. स्ट्रेन आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, राइट? सो the temperature of the wire should remain constant and there should not remain any strain into the conductor wire through which the current is flowing. These are the two limitations of the Ohm's law, right? ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हो. So that's all for today's class, students. In our next class we are going to derive an expression for this R, right? That how we can numerically express the term resistance. That all the things we will discuss in our next class. So that's all for today's class. Thank you.